कनेक्ट हो जाए ना तो उनको शॉर्ट्स अगर ले लेंगे। सर सर या तो इधर हो चुकी है या उधर हो चुकी है। माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय,
माननीय औद्योगिक विकास मंत्री, माननीय लोक निर्माण मंत्री, माननीय कुलपति एवं माननीय अधिष्ठाता शैक्षिक से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलित करें। विश्वविद्यालय की छात्राएं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वह माननीय कुलाधिपति महोदय को दीक्षांत समारोह 2023 का शुभारंभ करने के लिए आग्रह करें। माननीय कुलाधिपति महोदय जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दीक्षांत समारोह 2023 का शुभ आरंभ करने की घोषणा करें। मैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत संबोधन दें और विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Chancellor of Gautam Buddha University and Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, Honorable Cabinet Minister Shri Nand Gopal Nandi ji, Honorable State Minister Shri Brajesh Singh ji, Honorable Ambassadors of various nations, distinguished Jan Pratinidhigan, Member of Board of Governors, Board of Management, Academic Council,
faculty and staff members of GBU, parents and guardians, my dear graduating students, I stand before you today with profound appreciation as Gautam Buddha University is celebrating its convocation 2023. The presence of our esteemed Vice President of India and Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh and distinguished guests across all walks of life adds immeasurable honor to this convocation ceremony. Their commitment to nurturing young minds and guiding the future of our nation shines brightly through their presence here today. This convocation marks a monumental milestone as 7,914 students, including 282 doctoral candidates, are set to receive their degrees. Among them, we have 370 bright minds from Vietnam, Myanmar, Cambodia, Thailand, Mongolia, China, South Korea, Taiwan, Canada, Suriname, and United States of America, among others. Let me share a glimpse of our university's remarkable journey and achievements. Gautam Buddha University has been recognized as the University of the Year 2023 by the Academic Insight magazines. We are among India's top 10 institutions for our BTech Artificial Intelligence program. Our academic expansion includes the inceptions of 28 new academic programs in this current session, with growing enrollment across all programs. Our esteemed faculty members have marked on 12 social impact assessment projects, including projects related to Jewar International Airport and Electronic City, and 16 high-value research projects in emerging area of science and technology. International Conference on Health Psychology, Structural Biology, Drug Discovery, and the tenets of Buddha Dhamma have drawn global thought leaders in GBU campus. Our students, Vishal Nagar and Nikhil Tomar, won gold medal at Open International Taekwondo Championship. Over 60 companies conducted campus recruitment drives with an impressive 80% placement rate and the highest pre-placement offer of rupees 51 lakh per annum from Microsoft. Aligning with National Education Policy 2020, GBU is the only university in Uttar Pradesh offering integrated teacher education programs across multiple streams. The establishment of Noida, Greater Noida Knowledge and Innovation Network has solidified our position as a knowledge hub, having collaboration with government bodies, private universities, and industries. Our Center of Excellence in Drone Technology, along with 25 plus MOUs with prestigious entities, including Software Technology Park of India, National Disaster Management Authority, and ST Microelectronics, further underlines our commitment to innovation and collaboration. We hosted Khelo India program, Commonwealth and Asian Weightlifting Championship at the Eklavya Sports Complex in GBU. GBU has been one of the leading participating universities in G20 University Connect program. GBU has hosted UNESCO India Africa Hackathon under the central theme, Life, a mission of lifestyle for environment, an initiative of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji.
These achievements serve as a stepping stones towards a future where Gautam Buddha University will continue to shine brightly as a beacon of knowledge and development. All these milestones were attainable due to unwavering support of the Greater Noida Industrial Development Authority, Noida Authority, local administration of Gautam Buddha Nagar under the dynamic leadership of our Honorable Chancellor Sir. I extend my congratulations to all graduating students and heartfelt gratitude to everyone present here. Jai Hind, Jai Bharat. मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति एवं मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय अधिष्ठाता शैक्षिक से अनुरोध है कि वे माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय अधिष्ठाता शैक्षिक से अनुरोध है कि वे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री ब्रिजेश सिंह महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। परीक्षा विभाग के अध्यक्ष से आग्रह है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष स्क्रॉल हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करें। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्तकर्ता अब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। All the degree recipients are requested to please rise from their seats. All the degree recipients are requested to please rise from their seats. माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि उपाधि प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत करें।
माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं विश्वविद्यालय के 8 संकायों के विद्या वाचस्पति, स्नातकोत्तर और स्नातक कार्यक्रमों के 7,914 छात्र छात्राओं, जिनकी नाम सूची में है, जो मूल्यांकन के पश्चात उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं आप सभी को आपके संबंधित पाठ्यक्रम की उपाधि में स्वीकार करता हूं और मैं आज्ञा देता हूं कि आप अपने जीवन में सदैव अपने विचार, कार्य और व्यवहार से इसके योग्य साबित होंगे। आप सभी उपाधि धारकों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं माननीय कुलपति महोदय से दीक्षांत उपदेश के लिए आग्रह करती हूं। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायाय प्रमदः सत्यान प्रमदित्यवयं धर्मान प्रमदित्यवयं कुशलान प्रमदित्यवयं भूतैन प्रमदित्यवयं स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्यां न प्रमदित्यवयं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदित्यवयं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवत्व्यानि। दीक्षांत उपदेश का सार है सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के सुअवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में प्रमाद न करना, देवता और पितरों के कार्य, यज्ञ और श्राद्ध आदि से प्रमाद न करना, माता को देवी समझना, पिता को देवता समझना, आचार्य को देवता समझना, अतिथि को देवता समझना, अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना। समस्त उपाधि धारक कृपया अपने स्थान पर संकल्प लेने के लिए खड़े हो जाएं एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा उच्चारण किए गए प्रत्येक वाक्यों को दोहराएं। All the degree awardees are requested to please rise from their seats and repeat the sentences after the Honorable Vice Chancellor Sir. मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि उपाधि धारकों को संकल्प दिलाएं। मैं संकल्प लेता हूँ दीक्षांत उपदेश का पालन करूंगा, जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करूंगा,
का एक योग्य नागरिक बना रहूंगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति मेरी निष्ठा रहेगी। मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को चोट पहुंचे। मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता तथा सगे संबंधियों की कीर्ति धूमिल हो। भारत की सनातन संस्कृति में मेरी अटूट निष्ठा बनी रहेगी। भारतीय जीवन मूल्यों का सम्मान करते हुए उसके संवर्धन हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका पालन करूंगा। सभी उपाधि धारक अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को चांसलर मेडल से सम्मानित करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से चांसलर मेडल प्राप्त करने वाले छात्र हैं श्री शिवम कसाना, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, वर्ष 2016। सुश्री सोनल अग्रवाल, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वर्ष 2017। सुश्री सोनल अग्रवाल, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मनोज कुमार सिंह, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, वर्ष 2018। सुश्री ज्योति चपराना, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेज, वर्ष 2019। श्री प्रकाश पांडे, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेज, वर्ष 2020। श्री प्रकाश पांडे, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेज, वर्ष 2020। सुश्री अपूर्वा शर्मा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वर्ष 2021।
श्री आदित्य शर्मा स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेस वर्ष 2022। सुश्री पायल भाटी स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेस वर्ष 2023। विगत वर्षों में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। विभिन्न देशों के छात्र इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, भूटान। विभिन्न देशों जैसे कि वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, भूटान के छात्र हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में सांकेतिक तौर पर 5 देशों के 5 छात्रों को उपाधि प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वह 5 विदेशी छात्राओं को उपाधि प्रदान करें। म्यांमार से भिक्षु यनावरा डॉक्टरेट उपाधि, वियतनाम से फाम नत हुंग थाओ डॉक्टरेट उपाधि, लाओस से लुआंग सलत खोसवाना एमफिल उपाधि, थाईलैंड से सुतिसा लपर्मसक एमफिल उपाधि, ताइवान से टिंग वे वान एमए उपाधि,
मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने हेतु आग्रह करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ब्रजेश सिंह जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर एनपी मलकानिया जी, दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स, उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भी समारोह के मुख्य अतिथि और भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, संघर्षों से राह कैसे बनती है, इसके एक आदर्श प्रतिमूर्ति हैं हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, जिनका मार्गदर्शन कुछ ही देर में हमारे इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त करने वाले इन सभी नए छात्रों को नए जीवन में प्रवेश करने के लिए प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के सभी 7,900 से अधिक छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उन सबके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है। आपने गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी। और जीवन के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया था वे हर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती है। बुद्ध ने कहा था समस्या है,
यानी पहले हमने उसको स्वीकार करना, चुनौती को स्वीकार करना। समस्या का समाधान भी है। आपने जो समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा, और समाधान है तो उसका निवारण भी है। अक्सर होता क्या है, हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी विफलता का रहस्य कहां छुपा है? जब हम समस्या से मुंह मोड़ते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं, उसको जब स्वीकार ही नहीं करते, तो सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राह भी होती है। उस राह को चुनना, समाधान का रास्ता। और याद रखना, हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंचते हैं, बशर्ते हम स्वयं हिम्मत ना हारें। तो समस्या का समाधान भी है और मंजिल में पहुंच गए तो उसका निवारण भी है। बुद्ध का ये जीवन हम सब के लिए, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, उन सब के जीवन में बराबर घटित होता है। लेकिन उस राह को कोई उपयोग नहीं करना चाहता। बुद्ध का जीवन अपने आप में बहुत रोमांचक है, प्रेरणादायी है, देश और दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला है। हमने उसे किस रूप में स्वीकार किया, यह हम पे निर्भर करता है। जब उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होता है, उसकी भी अलग अलग घटनाएं हैं। आपकी तरह ही अंतर केवल इतना है कि बुद्ध राजमहलों में कैद हो गए थे, एक सिद्धार्थ, एक राजकुमार के रूप में। आप अपने शिक्षण संस्थानों में कैद हो जाते हैं। शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमें शिक्षित तो कर पाएगी, लेकिन जब तक उस शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो हमें ज्ञानवान नहीं बना पाएगी। और दोनों में ही अंतर है। एक आपका थ्योरेटिकल पक्ष है, थ्योरी का पक्ष है, सैद्धांतिक ज्ञान जो आपने शिक्षण संस्थानों में जुड़ा है, जिसकी एक नई शुरुआत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज फिर से प्रारंभ करने जा रहा है। उसको व्यावहारिकता के साथ जोड़ना। जब हमारे शिक्षण संस्थानों से कोई उपाधि धारक निकले तो वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसके सामने अपनी मंजिल तक पहुंचने का राह स्पष्ट हो। और यह हम सबके जीवन में अक्सर होता है। बुद्ध ने वे राह हमें दिखाई, स्पष्टता के साथ दिखाई। वे राजमहल में थे, देश और दुनिया की जानकारी नहीं। बुद्ध के मन में अचानक इच्छा होती है कि मैं देखूं तो बड़ा हो गया हूं, क्या है राज में, बाहर भी कुछ है कि नहीं है। तो निकलते हैं बाहर। उनको सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है। अपने सहयोगी से कहते हैं, मंत्री से पूछते हैं, ये कौन है, ऐसे कमर इसकी ऐसी कैसे हो गई है। तो उन्होंने कहा बुजुर्ग है। कहा बुजुर्ग क्या होता है? कई हर व्यक्ति के जीवन में होना है। कहा क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? कहा हाँ, ये तो सबको होना है।
वे वापस चल गए उनकी, क्योंकि कभी उन्होंने समस्याओं का सामना ही नहीं किया था। वापस घर में आ गए, सोचने लग गए, अरे मैं तो युवा हूं, एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, क्या होगा फिर मेरे जीवन का। वापस आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि फिर निकलता हूं। देखते हैं कि एक जगह बीमार आदमी को लेकर के 4 लोग जा रहे हैं। उसने पूछा ये क्या है? कहा बीमार व्यक्ति है। कहा बीमारी क्या होती है? कहा तो हर व्यक्ति के लिए है। एक शिशु युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था के बाद फिर उसकी जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर एक समय के बाद शरीर जर्जर होता है तो बीमार भी होता है। तो कहा क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? कहा एक उम्र के बाद तो कुछ दिन के लिए, तो कुछ देर के लिए तो होना ही पड़ेगा। फिर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर उनके मन में कुछ दिनों के बाद इच्छा होती है कि मैं देखूं क्या है। तीसरी बार की घटना उनको जब जोड़ती है, कि 4 लोग कंधा लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके सगे संबंधी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। का अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है? कहा मृत्यु क्या होती है? तो मृत्यु के बारे में सिद्धार्थ जानने की इच्छा से जब उनको पता लगता है कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जीवन की जो शाश्वतता हम सोचते हैं राजमहलों में वह नहीं रहेगी, तो बुद्ध अब शाश्वत खोज में निकल पड़े। शाश्वत शांति की खोज कहां होगी, कैसे प्राप्त होगी, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और फिर वह सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ते हैं। उन्होंने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद 3 उपदेश दिए हैं अपने शिष्यों को, अपने न्यायियों को। पहला उपदेश क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि। आपने यहां जब विश्वविद्यालय की कुलपति आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, दीक्षांत उपदेश भी भारत के गुरुकुल की परंपरा में उपनिषदों की, तैत्तिरीय उपनिषद के उपदेश हैं, जिसमें एक गुरु शिक्षा के उपरांत अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। उपदेश क्या है? भाई तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है इसका सार क्या है? सार यही है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। बुद्ध भी यही कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म क्या है? धर्म पूजा पद्धति नहीं है। धर्म जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्य, इनका जो समन्वित रूप है, जो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा। ये उपासना विधियां, पूजा पद्धतियां, ये देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। यह आवश्यक नहीं कि हर समय आप एक ही स्थान पर, एक ही जगह में, एक ही प्रकार की पूजा पद्धति को मानेंगे या लोग मानेंगे। ये देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती जाएंगी, लेकिन धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है, और उसे जो हमें इन सभी मूल्यों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बुद्ध ने भी प्रत्येक नागरिक को, अपने प्रत्येक शिष्य को, अपने प्रत्येक अनुयायी को इस मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरा उपदेश उन्होंने दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में बताओ, बुद्धि की शरण में। बुद्ध का मतलब विवेक से है।
हम विवेकशील बने जीवन में। कोई कार्य करना हो 10 बार सोच लो, और जब एक बार आगे बढ़ जाओ तो फिर पीछे मत रहो। अक्सर होता क्या है, हम कोई राह चुनते हैं, कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने तय ही नहीं किया कि हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है। रास्ता चुनने में जो भय होता है, जो दिक्कतें होती हैं, यहीं से कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन से दूर होना, बुद्ध ने उससे हमें दूर किया। उन्होंने कहा विवेकशील बनकर के ही कोई निर्णय करो। और तीसरा, संगम शरणम गच्छामि, संगठित होकर के कार्य करना, टीम वर्क। याद रखना, टीम वर्क परिणाम देता है। सामूहिकता, सामूहिक रूप से निर्णय लेने की सामर्थ्य, ये लोकतंत्र की ताकत भी है, यही हम सबकी ताकत है। विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय, कोई उद्योग जगत हो या कोई परिवार, अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जबरन अपनी बात को थोपने का प्रयास करेगा, अन्य लोगों की बात को नहीं मानेगा, परिवार में विद्रोह हो जाता है, लोग नहीं मानते एक समय के बाद। एक टीम वर्क परिणाम देता है। टीम वही परिणाम देती है जो संगठित होकर के, एकजुट होकर के, वन लीडरशिप में कार्य करती है। और परिणाम संगम शरणम गच्छामि, संगठित होकर के, एकजुट होकर के कार्य करना। और बुद्ध का उद्देश्य मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपने देखा होगा, जीवन की संपूर्णता को लेकर के बुद्ध ने इस कार्यक्रम को अपना आगे बढ़ाया। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद 36 वर्ष बुद्ध ने केवल सामाजिक जन जागरण के कार्यक्रम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप सब उस कालखंड के, उस महान संत के, परंपरा के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिन्हें आज विश्वविद्यालय अपने द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपाधि वितरित कर रहा है। विश्वविद्यालय के पास अनंत संभावनाएं आगे बढ़ने की। इन अनंत संभावनाओं को अपने जीवन में समेट करके जीवन की राह को चुनना, और उस राह को चुनते हुए आपका अपना मार्ग प्रशस्त करना, ये हर एक नागरिक के लिए भी आवश्यक है। समाज के हित में भी यही है और राष्ट्र के हित में भी यही है। और उन्हीं मूल्यों को समाहित करते हुए इस विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। युवा साथियों, भारत का हित हो या वैश्विक समुदाय का हित, ये युवा पीढ़ी को तय करना है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत के अंदर है, और भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं तो कैसा परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के हम भी बाहर बन सकते हैं, हम भी बाहर बन सकते हैं। हमने अपने महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को एक टापू बना दिया है, जिसका देश और दुनिया से कोई संवाद नहीं, कोई संपर्क नहीं। विश्वविद्यालयों का मतलब केवल डिग्री बांटने का, उपाधि बांटने का एक अड्डा हो गया। विश्वविद्यालय केवल शैक्षिक डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बांटने के माध्यम न बने, बल्कि समाज के साथ और राष्ट्र के साथ उसका तारतम्य किस रूप में है, इसका भी उसको सशक्त माध्यम बनना पड़ेगा।
जिस समाज के बीच से हम लोग निकले हैं, क्या उस समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? हम इतने बड़े विश्वविद्यालय में रह करके जो अध्ययन कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के निर्माण में क्या समाज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? इसकी एक एक ईंट समाज के सहयोग से प्राप्त पैसे से लगी है, और इसलिए समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करना है। जो आपने दीक्षांत उपदेश में इस बात को कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता, आचार्य या अतिथि को किसी चेयर में बिठा करके और धूप बत्ती और दिया धूप दिखा करके उनकी आरती करिए। उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होना, क्योंकि उनके कारण आप इस धरती पर हैं, उनके कारण आप इस शिक्षा के मंदिर में हैं, उनके कारण आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। एक कृतज्ञता का भाव, और ये भाव ऐसे ही समाज के प्रति भी कि हमें ये विश्वविद्यालय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। सरकार एक माध्यम है, लेकिन ये किसका कंट्रीब्यूशन है? समाज का। तो समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है? इस दायित्व के लिए, समाज के लिए, और मुझे प्रसन्नता है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जब देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ी, तो मैंने विश्वविद्यालय से कहा था, मैंने कहा विश्वविद्यालय को कोई डिग्री बांटने तक सीमित नहीं होना होगा, बल्कि इससे आगे भी जाना होगा। सोशल इंपैक्ट स्टडी की जब बात आई, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सोशल इंपैक्ट स्टडी का कार्य विश्वविद्यालय ने किया। तो स्वाभाविक रूप से एक आपकी फैकल्टी को भी और आपके छात्रों को भी एक नया अनुभव हुआ, और विश्वविद्यालय की इनकम भी बढ़ी। पैसा बुरा थोड़ा होता है, लेकिन नैतिक तरीके से अगर वो विश्वविद्यालय में आ रहा है तो हमें लेने में संकोच थोड़ा करना है। और विश्वविद्यालय ने सोशल इंपैक्ट स्टडी के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज इस प्रकार के 3 MOU महामहिम उपराष्ट्रपति जी के सम्मुख विश्वविद्यालय, क्योंकि कई विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में, कुलाधिपति के रूप में उनका आशीर्वाद देश की युवा शक्ति को प्राप्त होता है। जीवन का एक लंबा अनुभव जीवन का उनके पास है। शून्य से शिखर की उस यात्रा के वे पथिक हैं, जो आज देश के भारत गणराज्य के एक संवैधानिक पद पर बैठ करके भारत के उच्च सदन के चेयरमैन के रूप में पूरे देश को एक नया मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इसलिए यह दूसरा इंस्टीट्यूशन का इंडस्ट्री के साथ आपस में जुड़ाव, उस बड़े कार्यक्रम को भी हम माध्यम बना सके। हमारी संस्थाएं इनोवेशन के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर बने। वहां से निकले हुए छात्र जब कहीं निकले तो दिखना चाहिए कि हाँ, ये छात्र अपना राह स्वयं चुन लेगा। और उसी राह को बनाने के लिए आज हम सब इस दीक्षांत समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे 8 छात्रों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं, और तमाम वे छात्र भी यहां पर हैं जो हमारे मित्र देशों से जुड़े हुए, उन देशों से हैं जिन्होंने बुद्ध को आत्मसात किया है, बुद्ध को अपने जीवन में आत्मसात किया है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और भी अन्य देश हैं जो लोग बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और उन्होंने दुनिया के अंदर अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपनी कृतज्ञता के भाव से, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, इन देशों ने बुद्ध के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नई मंजिल हासिल की है, दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किया है। और इस अवसर पर इतने बड़ी संख्या में छात्र हैं
ये नई संभावनाओं को आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी देती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, संजोग से इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति प्रारंभ से ही मुख्यमंत्री रहा है, तो आपको तो वैसे भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। देने वाला तो देना चाहता है, लेकिन लेने वाले की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण होना चाहिए, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी होगी और उसके लिए विश्वविद्यालय अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के समारोह की मुख्य अतिथि भारत के हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद सड़क मार्ग से समय से पहले वे दीक्षांत समारोह के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आप सबके लिए एक नई प्रेरणा है। याद रखना, मीटिंग में अक्सर लेट में पहुंचने की जो आदत है ना, उन लोगों के लिए भी यह एक नया उदाहरण है कि भारत का उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय में समय के पहले आकर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा दे करके गए हैं, एक नया आदर्श छोड़ करके गए हैं और इससे उनका आज का यहाँ पे आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है, उनको, उनके परिवार के सभी अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस को देश से पूर्ण रूपेण समाप्त करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी दृढ़ संकल्प है। विश्वविद्यालय ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए डॉट कार्यक्रम के अंतर्गत 10 व्यक्तियों को गोद लेने का निर्णय लिया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करती हूं कि उनमें से 2 व्यक्तियों को डॉट किट प्रदान करें। चिराग प्रकाश शर्मा, सुपुत्र श्री प्रकाश शर्मा, उम्र 11 वर्ष। सादिक सुपुत्र श्री कमरुद्दीन, उम्र 21 वर्ष। डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह से मेरा निवेदन है कि वे कुमार चिराग प्रकाश शर्मा एवं श्री सादिक को मंच पर लेके आएं। युवाओं को रोजगार के लिए कुशल बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत
इंटर्नशिप का 50% उद्योग जगत एवं 50% उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसी क्रम में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उद्योग जगत की 4 कंपनियों के साथ MOU हस्ताक्षरित किया जाना है। अब मैं अधिष्ठाता शैक्षिक एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं। कंपनियों के नाम है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरा प्रतिनिधि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं, कृपया उनके प्रतिनिधि मंच पर आएं। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके प्रतिनिधि से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म है। एडवर्ड टेक्नोलॉजीज जो कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के क्षेत्र में कार्यरत है। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि आज के दीक्षांत समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को दीक्षांत समारोह को संबोधन करने के लिए आमंत्रित करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए अनुरोध करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। वो मेरे जीवन का एक सुखद पल था जब मुझे कहा गया
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी बात करना चाहते हैं। और उनका निमंत्रण था यहाँ आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और दुनिया में तो नाम हासिल किया है, उसके बावजूद मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। I was amazed when Honorable Chief Minister took oath as Chief Minister of Uttar Pradesh। और हालात क्या थे, कानून की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, ये प्रदेश दोनों में चिंता का विषय था। हताशा इतनी थी कि लोगों को चिंतन करने का मन नहीं था। हम कहां से कहां आ गए। उत्तर प्रदेश is a role model of law and order। देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया। लंबे समय से वकालत के पेशे में रहने के कारण उद्योग जगत से मेरा काफी नाता है। उत्तर प्रदेश has become hot favorite destination of investment of premium category। साधारण इन्वेस्टमेंट तो आता ही है। I am grateful, Honorable Chief Minister, for affording me this unique opportunity। As Governor State of West Bengal, I was Chancellor of 3 dozen state universities and 11 private universities। मुझे पता है कुछ जगह चांसलर के साथ क्या होता है, पर मुझे कुछ सुखद अवसर भी मिला है चांसलर होने का। एज वाइस प्रेसिडेंट I am Chancellor of the Punjab University, but I can say this convocation is unique। This convocation has dimensions of growth, confidence, civilizational ethos। हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात होना, दिल और दिमाग को सही रखना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टोलन माई हार्ट एंड स्टोलन पार्ट ऑफ माई एड्रेस ऑल्सो। Ladies and gentlemen, and of course, congratulations to the awardees। I have to change my course। I will have to deviate from my address। I thought a politician will be addressing you। No, a spiritual leader, an academician, a statesman, and a far-thinking person spoke to you। Honorable Ministers of Uttar Pradesh Government, Vice Chancellor Professor Ravindra Kumar Sinha ji, and Dean Gautam Buddha University। कन्वोकेशन एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव भी है। इट्स अ माइलस्टोन, उसके जीवन का गेम चेंजर है। His efforts, endeavors, aspirations, dreams fructify into a degree, and today 7,914 students have got the benefit of it। My congratulations to you। And
282 of them doctorates. I'm especially attached to doctorates because my wife is one. It is of great significance that 370 of them are from abroad. Friends, you walk, I'm talking in the context of India first, Bharat, that is home to 1/6 of humanity. You are walking into the world now. You are taking a larger leap. But unlike my time, which was very difficult, I was elected to Lok Sabha in 1989. I was a union minister. So I know both these sides. One, the difficulties which I faced as a student. Scholarship नहीं मिलती तो पढ़ाई नहीं कर पाता. And I have seen what Bharat was in 89 to 91. सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा. वो हालात थे हमारे. हम आज कहाँ आ गए? Boys and girls, you are walking into an ecosystem now. जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है. एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विद पावर ब्रोकर्स. बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था. These elements, nefarious elements, leveraged decision making in the higher echelons of power at the state and center. और आज क्या है? चाणक्य की नीति को अपनाकर जड़ से उनको नष्ट कर दिया. We have now an ecosystem where our power corridors have been sanitized of corrupt elements, middlemen. ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन? किसी भी समाज के लिए, खास तौर से प्रजातांत्रिक समाज के लिए, ये बहुत जरूरी है कि हम आम आदमी अपना सर उठाकर चले कि मेरे को वो अधिकार हैं जो दूसरे को हैं. आई विल बी ट्रीटेड इक्वली. और कानून की दृष्टि में मैं एक रहूंगा, कोई भेदभाव नहीं होगा. पर जमाना था कानून हमारा क्या कर लेगा? कानून हमारी मुट्ठी में है. कानून का शिकंजा हमारे गले तक कैसे पहुंचेगा? और ये हकीकत भी थी. There has been a sea change, a change for the better. No one is above the law now. किसी लिनेज का हो, किसी सक्सेशन का हो, किसी पद का हो, कोई भी हो, पर एक नई संस्कृति चालू हो गई है. With the young minds of this country have to deal with. जब ऐसे एलिमेंट्स को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जो करप्शन में लिप्त हैं, आई एम नॉट टॉकिंग इन पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग इन जनरल. दे आर अकाउंटेबल ओनली टू लॉ. उनको रिलीफ यदि कहीं मिलेगी तो कानून के रास्ते से मिलेगी. मुझे समझ में नहीं आता वो सड़क पर क्यों आ जाते हैं. यू हैव टू जनरेट दैट सिस्टम. इंडिया और भारत इज विटनेसिंग फिनोमिनल ग्रोथ, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ. हमने तो सपना भी नहीं देखा था कि क्या भारत यह स्वरूप लेगा. आपने भी नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण होगा. लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहेंगे, हर तरीके से देश फूलेगा फलेगा. उत्तर प्रदेश के आधार पर ये बदलाव आया है. जो संस्थाएं विदेशों में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
वर्ल्ड बैंक पहले क्या कहते थे? इंडिया इज वन ऑफ द 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपके लिए जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे हैं। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। By turn of this decade, by 2030, we would have left behind Japan and Germany also. और हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, समस्या समझना, समस्या का आकलन करना, समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढना, समस्या का समाधान कौन करेंगे उनको चिन्हित करना और फिर करना। आई एप्रिशिएट हिम, आई कमेंड हिम। ये इनका भाषण नहीं है, ये इनका वर्तमान है, इनके शासन कार्यकाल के इनकी भूमिका रही है। और इसीलिए कहा गया है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। He symbolizes today a person of action who thinks big, takes on issues and moves ahead. यही आज आप सबको करने की आवश्यकता है। यदि अगर हम कल्पना कर रहे हैं what will be our भारत 2047, मेरी उम्र के लोग उस समय शायद न रहे, पर आप में से सब रहेंगे जिनको डिग्री मिली है। यू आर फुट सोल्जर्स ऑफ भारत 2047। यू विल मेक भारत द मोस्ट डेवलप्ड नेशन और हम विश्व गुरु बनेंगे। मेरी एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये विद्यालय गौतम बुद्ध विद्यालय विश्वविद्यालय must come up to the level of Nalanda and Takshila. मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसी कोई मांग नहीं की गुरुजन से, परिजन से या मित्रों से जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो। पर मेरी इस मांग में सब मानेंगे कि ये मांग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 100% इम्प्लीमेंटेबल है। एक चर्चा हुई जिसका रेफरेंस वाइस चांसलर ने दिया। वी आर फेसिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, वी हैव टू लिव विद देम। दे have entered our office, they have entered our home. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप देखिए, मशीन लर्निंग, ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत सरकार ने इन मामलों में दुनिया में एक तरीके से पहल कर रखी है। देयर इज ऑलरेडी एन एलोकेशन ऑफ 6,000 crores फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग और पूरा कंप्यूटर मैकेनिज्म बदल जाएगा। वी ऑलरेडी हैव एन एलोकेशन ऑफ 90,000 crores फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मशीन लर्निंग, इतना फास्ट डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, मशीन लर्निंग से यू कैन डू इट। 6G आम लोगों के लिए 5G से कुछ बेहतर है। हमारा फोन थोड़ा ज्यादा काम करेगा, नो, it is much beyond that. India is amongst very few countries that have taken lead, and commercialization portion of 6G will be unfolded from 2025 to 2030. I am telling you, boys and girls, sky is the limit when it comes to opportunities for you in this land of Buddha, in this land of Gandhi.
examples have been set here on 2 counts. They carry great message, not because of the number here, but because of the directional approach. जिन 2 बच्चों को किट दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक के कान में ये कहा, दवाई रेगुलर लेना. It's a great message. You can handhold, पर थोड़ा आपको भी सहयोग करना पड़ता है. Participation of the corporate world is very significant. I complimented the Honorable Chief Minister कि आपने एक बहुत अच्छा काम कर लिया. यदि अगर सरकार आधा पैसा नहीं देती, with due respect to the corporate, शायद उनका आधा आने में समय लग जाता. अब समय नहीं लगेगा. This is much beyond self audit. Corporate आगे से आकर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी करेंगे. ये शुरुआत है. मेरा मन कई बार दुखी होता है. विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार ने 2009 में $5 मिलियन दे दिया. एक उद्योगपति ने $50 मिलियन दे दिया. मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, पर हमें सर्जन करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, अपनी संस्थाओं को भी सींचना चाहिए. दुनिया में कहीं भी जाकर देख लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट is normally inspired and funded by corporates. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग हो, इनका हमारे सुरक्षा से भी बहुत लगाव है. क्योंकि सुरक्षा के मामलों में उत्तर प्रदेश इज कमिंग अप एज अ ग्रेट हब ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. तो उत्तर प्रदेश उपयुक्त प्लेस है, उत्तम प्लेस है, जहां इस प्रकार की संस्था को नर्चर किया जाए. और कितना विशाल यहाँ का कैंपस है, कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है. एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम श्योर दिस विल हैपन. हम हमारा रास्ता भूल गए थे. इसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं. थ्रू योर वाइस चांसलर, आई इनवाइट स्टूडेंट्स of Gautam Buddha University to visit new Parliament building. What you will see there is highest technological application and full reflection of our civilizational ethos. पूरे देश की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का संकेत आपको वहां मिलेगा. I am sure the Vice Chancellor will take initiative. My office will coordinate. As many students as can see. I am greatly motivated by the address of the Honorable Chief Minister, and therefore, as Chairman of the Indian Council of World Affairs, we had the occasion that several our friends have come from outside, and we had the occasion to give recognition to people from 7 countries here. Indian Council of World Affairs, a very prominent body that shows window to the world, our window to the world, will have an MOU with Gautam Buddha University in next 30 days. And that will benefit the university, because from all over the world, when experts in various walks of life come, they will be able to interact with the students, the faculty of this great university. I will bring it about, as I said.
I had the good fortune, by virtue of being Vice President of the country, to witness G20. World leaders indicated, Mr. Vice President, your Prime Minister has put a very high benchmark. Never before in the history of G20 there was this achievement. For the first time, African Union was included in G20. थोड़ा अंदाजा लगाइए कि यूरोपियन यूनियन तो पहले G20 में थी। यूरोपियन यूनियन में कौन से देश थे जिन्होंने अफ्रीकन यूनियन के देशों पर राज किया? ये भारत की पहल थी। दूर का सोच था कि उनको एक पटल पर ला दिया। पहली बार दुनिया में ग्लोबल साउथ नेशंस की लोगों ने तो पहले नाम भी नहीं सुना था। India became the voice of global south. The resolution of the same was very impactful all over. और वो देश कौन है तो दुनिया के 65% जीडीपी को ध्यान देते हैं। मेरा आपको यही कहना है कि आज किसी भी बात को देख लो, समुद्र में देखोगे तो विक्रांत का नया रूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, हमारे देश में निर्मित। जब अपने डिफेंस प्लेन की बात करते हैं, तेजस भारत में निर्मित है, हेलीकॉप्टर भारत में निर्मित है। जब स्पेस की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 लैंडेड एट द साउथ पोल ऑफ मून, जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं जा पाया है। और कितनी प्रसन्नता का विषय है, चांद पर तिरंगा पॉइंट भी है और शिव शक्ति पॉइंट भी है। बट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेल यू, आई हैव इंटरेक्टेड विद इसरो चेयरमैन सेवरल टाइम्स। आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। 60 के दशक में भारत और पड़ोसी देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत ने दूसरे देश के पैड से लॉन्च किया था, हमारे पड़ोसी देश ने खुद के यहां से किया था। आज हालात देखिए, आवर इसरो इज लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स ऑफ यूएसए, यूके, सिंगापुर एंड अदर नेशंस। ये हमारा अटेनमेंट है। आपके लिए अपने टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए असीमित अवसर हैं, बट नेवर बी इन टेंशन, नेवर बी इन स्ट्रेस। हेवंस हैव नेवर फॉलन हिस्टोरिकली। आपके मन में यदि अगर कोई विचार आता है तो आप अपने मस्तिष्क को उसका पार्किंग लोकेशन मत होने दीजिए। उस विचार को एग्जीक्यूट करने की सोचिए। नेवर फियर फेलियर। जो फेलियर को फियर करते हैं उनमें हताशा आएगी। फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। क्योंकि भारत के अच्छे गवर्नेंस में यदि अगर सबसे ज्यादा कोई स्टेक होल्डर है वो आप लोग हैं, और भारत के फ्यूचर को सबसे ज्यादा शेप करने में जिनका योगदान रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर दैट कैटेगरी। एंड देयरफॉर ऐसा कोई हैंडीकैप आप मत मानिए where you have to look beyond the frontiers of this country. When I come to corporates, there is hardly a corporate in the world where a human genius and human resource is not dominating at the top. आज का भारत किसी के शिकंजे में नहीं है। भारत की अपनी सोच है विदेशी मामलों में। हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। हमारे पासपोर्ट की वो इज्जत है जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। वी आर इन अ पोजिशन टू टेक टफ स्टैंड्स। बट बुद्ध की बात को ध्यान में रखते हुए मानिए, बुद्ध की शुरुआत में क्या था? माननीय
मुख्यमंत्री जी ने जो कही है उस समय मेरे मन में आया कि वी विल पुट इट इन संसद टीवी, क्योंकि आपने सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप जो बताया है, बट अल्टीमेटली बुद्ध किसमें क्रिस्टलाइज हुआ? भारत दुनिया में अकेला देश है जिसने आज तक सीमाओं के पार कुछ ग्रहण करने की कोशिश नहीं की है। आक्रमण बर्दाश्त किया। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इश्यूज मस्ट बी डिसाइडेड बाय डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that has constitutionally structured democracy at the village level, at the Panchayat Samiti level, at the district level, at the state level, at the central level. India is the only country where power transfer is by the ballot. कभी कोई समस्या नहीं आती है। मशीन से निकल गया, इलेक्शन कमीशन जो नतीजा बता दिया, देयर इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन दिस कंट्री ऑफ दैट। फिर कोई वहां जाकर ये बात करते हैं। वी हैव टू जनरेट अ क्लाइमेट दैट एंटी नेशनल नैरेटिव्स set at float by design, by strategy to malign institutions, high constitutional offices, they must be nipped in the bud. उसमें आप सबका योगदान जरूरी है। ऐसी विकट समस्या में जब भारत ऊपर जा रहा है, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हमारी संस्कृति को, हमारी ग्रोथ को धूमिल करना चाहते हैं। आपकी चुप्पी नहीं रहनी चाहिए। साइलेंस विल एवर रिजोनेट इन योर ईयर्स एंड देयरफॉर हैव योर माइंड, यूज योर डिस्क्रिशन, बी जजमेंटल अबाउट इट एंड देन टेक द राइट कोर्स। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, हमारा अटूट विश्वास भारतीयता में है। We will always keep interest of the nation above everything else. We are proud citizens of Bharat and we will ever take pride in its historic rise. एक बार फिर से जिनको डिग्री मिली है, मुझे भी मेरा दिन याद है, डिग्री मिली है, कब मिली थी, उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको भी आप नहीं भूल पाओगे, मैं भी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहता था उसको मेरे से बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कह पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सादर धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अब मैं समस्त चांसलर मेडल प्राप्त करताओं और विभिन्न देशों के 5 छात्र जिन्हें इस मंच पे उपाधि दी गई है, निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आएं। माइक
मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय को दीक्षांत समारोह की आधिकारिक समापन की घोषणा करने हेतु आग्रह करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह 2023 के आधिकारिक समापन की घोषणा करें। मैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2023 के समापन की घोषणा करता हूं। सभागार में उपस्थित सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने श्रियं देवी मुपत्मये श्रीर्मा